ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವನಗುಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 2022 ರಂದು ಆಮ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರೈತ ಸಮಾವೇಶವು ರಣಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ರೈತರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕರತಾಡತನದ ಮಾರ್ದನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾವೇಶವು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿತು. ರೈತರ ಬೆಳೆದ ರಾಶಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಭಾರತಮಾತೆಯ ಜೈಕಾರದ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಚಿರವಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ನೋವುನಲಿವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರಲ್ಲದೆ, ಈವರೆಗಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಶೇಕಡಾ 20% ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 40% ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 45% ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದಾದರೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದೆಂದರು. ರೈತರ ವಿರೋಧ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಕರಾಳ ಕಾನೂನು ತರಬೇಡಿ ಎಂದರೂ ಕೇಳದೆ ರೈತರು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಶೂನ್ಯ% ಶುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಸಿಬಿಐ, ದಿಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಾಲಯಗಳಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸಹಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ದಿಲ್ಲಿಯ 2 ಕೋಟಿ ಜನತೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಲೋಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲನೆ ಎಂದರು. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮೊನಚು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹರಿಹಾಯುತ್ತಾ, ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೋಡಿ ಬಾಲಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಅವರ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ದೇಶದ ಗತಿ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರಲ್ಲದೆ, ಹೀಗಾದರೆ ದೇಶ ಎಂದಿಗೂ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ನಮ್ಮದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ, ಸಜ್ಜನರ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸುಧಾರಣೆ ಯಾವಾಗ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮಾರ್ ನಾಯಿಕ, ಲೋಕನಾಯಕ ನ್ಯೂಸ್. कोने कोने से आए हुए तो चंद्रशेखर जी, आज मैं बहुत सारे पेन किलर लेके आया हूँ. मुझे आज आना था क्योंकि हम किसानों की इज्जत करते हैं. हमारी पार्टी किसानों की इज्जत करती है. ले गया, उसको सबने समझाया कि रामचंद्र जी भगवान हैं, भगवान का अवतार है, इनसे दुश्मनी मत लो. विभीषण ने समझाया, रावण की पत्नी मंदोदरी ने समझाया कि सीता को वापस कर दो. लेकिन रावण में बड़ा अहंकार था. उसे लगता था वो तो सारी दुनिया को जीत सकता है. वो नहीं माना. अंत में हम सब जानते हैं रावण का क्या हुआ. उसी तरह से केंद्र सरकार को अहंकार था. उनको लगता था वो कुछ भी कर सकते हैं. उन्होंने 3 काले कानून पास किए. उनको अहंकार था कि हमें किसानों की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार को बहुत समझाया, किसानों से पंगे मत लो. किसान अगर सड़क पे उतर गए तो तुम्हारी सरकार हिल जाएगी. केंद्र सरकार नहीं मानी. आज किसानों को राजनीति में आने का निर्णय क्यों लेना पड़ा? 75 साल हो गए आजादी को. 75 साल के बाद भी आज किसानों का इतना बुरा हाल है. देश के कोने कोने में किसान आत्महत्या कर रहे हैं. किसान, छोटा किसान खासकर, इतनी गरीबी की हालत में जीता है. किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता. वो चाहता है मैं कुछ और बन जाऊं, लेकिन मैं किसान ही नहीं करूंगा. इन्होंने किसानों का बुरा हाल कर दिया. अभी जैसे चंद्रशेखर जी ने बताया, देश का 45% लोग किसानी के ऊपर निर्भर है।
इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर लोग अगर किसानी पे निर्भर हैं, अगर ये सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो बड़ी से बड़ी सरकारों को गिरा सकते हैं। अभी मैं सुन रहा था की सरकार है, दिल्ली में 0% की सरकार है, और ये मैं कट्टर ईमानदार सरकार है, एक पैसे की रिश्वत नहीं लेते, एक पैसे की। इस बात का सर्टिफिकेट मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके आया हूं कि केजरीवाल सबसे ईमानदार आदमी है। कैसे? प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड कराई, सीबीआई वाले मेरे दफ्तर में आए, मेरे घर पे सीबीआई की रेड हुई, दिल्ली पुलिस की रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड हुई, सबकी रेड हुई, मेरे बेडरूम को भी छान लिया उन्होंने, कुछ नहीं मिला। ये 20% और 40%, ये सारा हिसाब किताब इनका बंद करना पड़ेगा। मैं एक आम आदमी हूं, मुझे पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मैं आप ही की तरह हूं। मेरे भी घर में मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, पर मैं एक आम आदमी का दर्द समझता हूं। एक आम आदमी किस तरह से इतनी महंगाई के जमाने में अपने बच्चों को पालता है, मैं ये समझता हूं। एक आम आदमी क्या चाहता है कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले। जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, कर्नाटक में भी मुझे बताते हैं सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है कि नहीं है? सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट से ज्यादा अच्छे हैं। शानदार सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल है, लिफ्ट है, शानदार ऑडिटोरियम है। आपने प्राइवेट स्कूल ऐसे नहीं देखे होंगे जितने अच्छे सरकारी स्कूल। इस साल 4 लाख बच्चों ने अपने नाम कटवा के, प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए। दिस इज मैजिक। 75 साल में देश में ऐसा नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शानदार सरकारी स्कूल। कर्नाटक में चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। दिल्ली में मुफ्त है। दिल्ली सरकार दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए, दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए हमने सारा इलाज मुफ्त कर दिया। दिल्ली में बिजली भी मुफ्त है। ये मैजिक है। पहले दिल्ली में बिजली खूब जाया करती थी, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली मिलती है लोगों को। 0 बिजली के बिल आते हैं, 0 बिजली के बिल। आप लोग आश्चर्य करेंगे कैसे? एक ही चीज, हम ईमानदार हैं, हम पैसे नहीं खाते, हर चीज में पैसे बचाते हैं, ईमानदार सरकार है। इतना पैसा बचाया हम लोगों ने, इतना पैसा बचाया। इतनी महंगाई के जमाने में हमने 5 चीजें मुफ्त कर दी दिल्ली के लोगों के लिए। शिक्षा मुफ्त है, शानदार सरकारी स्कूल। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो, सब कुछ मुफ्त। आपकी सारी हेल्थ मुफ्त है। आपके घर में कोई भी बीमार होगा, किसी भी तरह की बीमारी होगी, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट सब मुफ्त है। आपका बिजली मुफ्त है, आपकी पानी मुफ्त है, पूरी दिल्ली के लोगों का पानी मुफ्त है। घर के ऊपर कुछ गुंडों ने हमला किया, मेरे घर में घुस गए वो लोग। मेरे को अपनी जान की परवाह नहीं है। मेरी जान देश के लिए हाजिर है। अगर देश के लिए 100 बार मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। और मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अगर मुझे अपने देश के लिए जान देनी पड़े। लेकिन उस दिन जब ये सारे गुंडे मेरे घर के में कहीं कोई बलात्कार करता है, ये लोग बलात्कार करने वाला का स्वागत करते हैं, उसकी शोभा यात्रा निकालते हैं। एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ एक राज्य के अंदर, इन्होंने
अस्पताल बनाने आते हैं, सड़कें बनानी आती हैं, बिजली देनी आती है, पानी देनी आती है। आइए मिलके, जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे।